Good morning, students. Today we are going to start with the story The School for Sympathy, and it is written by E.V. Lucas. What we are going to read in this story is about thoughtfulness, about sympathy, and what E.B. Luca is suggesting here is the need to lend a hand for another, and we should not disregard the weakers. So, the main character, Miss Beam, here is a pioneer of teaching methods. Now, let us begin. In the first slide, I would like to tell you about the main activities we are going to deal in the story. We will learn about the theme, which is real meaning of education. That education is not about fact searching or delivering of facts. Education is about making good citizens with real human hearts, and obviously when you will read these stories you will develop understanding of new words and phrases, and obviously your writing skills will be improved when you will write down the question and answer sections. Now, who is E.B. Lucas? Sometimes it is also pronounced as Luca, but the American and British pronunciation is Lucas. He is essayist, right? And he generally writes essays, but here the School for Sympathy is a story. And he is assistant editor of a very famous magazine, Punch. Then he has written many anthologies. The famous one is The Open Road and The Friendly Town. एंथोलॉजी क्या होता है? एंथोलॉजी कलेक्शन होती है किसी भी एक सब्जेक्ट पर लिखी हुई, बट इसको अलग अलग राइटर्स लिखते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोरोना वायरस पे बहुत सारे राइटर्स अपनी अपनी सोच पे लिखते हैं, बट दे राइट इन अ कंपाइल्ड बुक, तो हम इसको एंथोलॉजी बोलेंगे. सो E.V. Lucas जो है, ही इज़ नोन फॉर हिज एंथोलॉजीज. नाउ द स्टोरी बिगिंस. Right, this is page 122 of your book. I am going to read it and then we will come back to the points here in the slide. I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. तो हम लोगों को स्टोरी की सेटिंग समझ आ रही है. द सेटिंग इज़ ऑफ अ स्कूल. किसी स्कूल में सारी स्टोरी की सेटिंग है. Students, please keep it in mind whenever we are reading a drama or a novel or a poem, there is always a setting, right? तो यहाँ पे कौन सी सेटिंग है? स्कूल की. किसका स्कूल है? अपनी स्लाइड पे देखेंगे स्क्रीन पे. पहला पॉइंट है मिस बीम. तो फर्स्ट करेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड, शी इज मिस बीम. एंड हु इज गोइंग टू विजिट देयर? वहाँ पे राइटर E.V. Lucas विजिट करने गया है. नेक्स्ट, देयर वॉज नो वन इन साइड but a girl of about 12, with her eyes covered with a bandage, who was being led carefully between the flower beds by a little boy of some 4 years her junior. She stopped and evidently asked who it was that had come in, and he seemed to be describing me to her. Then they passed on. अब जब E.V. Lucas एंटर करता है मिस बीम के स्कूल में, तो उसको सबसे पहले कौन मिल रहा है? पॉइंट थर्ड देखेंगे. ही मीट्स अ गर्ल. उसकी एज कितनी है? शी इज़ अबाउट 12 years. और उसकी फीचर्स क्या बताए हैं? हर आईज आर कवर्ड विद अ बैंडेज. एक किसी कपड़े से उसकी आंख बंधी हुई है. एंड शी इज़ लेड बाय लिटिल बॉयज़. लेड जो है लीड की सेकेंड फॉर्म है. लीड क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं शी लीड्स मी, वो मुझे वहाँ पे लेके गई. तो वो जो 12 साल की लड़की है उसको एक लड़का साथ में, छोटा जो उससे लड़का है, वो उसको डायरेक्शन दे रहा है, बिकॉज हर आईज आर बैंडेज्ड एंड कवर्ड विद सम क्लोथ.
एंड दे स्टॉप टू आस्क अबाउट हु हैज़ कम इन. वो लड़की जो है, हालांकि उसकी आंखें बंदी हुई है, बट शी इज़ सो एक्टिव. वो एकदम से पूछती है हु हैज़ कम, और वो जो लड़का है वो उसको बता रहा है दैट अ मैन हैज़ कम हेयर एंड ऑल. मिस बीन वॉज दैट I had expected. Middle aged, authoritative, kindly, and understanding. Her hair was beginning to turn grey, and her figure had a fullness likely to be comforting to a homesick child. अब मिस बीम के बारे में एकदम नैरेटिव चेंज हो जा रही है, स्टोरी अगेन शिफ्ट हो रही है मिस बीम के फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में. कैसी है उनकी फिजिकल करेक्टर? शी इज़ मिडल एज्ड, ठीक है, मिडल सी एज है उनकी. शी इज़ नीदर यंग नोर ओल्ड. अथॉरिटेटिव मीन्स जिनकी पर्सनैलिटीज़ बहुत रोबदार होती है. बट उसके साथ देखिए क्या बताया, शी इज़ वेरी काइंड, अंडरस्टैंडिंग, और शी इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट हार्टेड लेडी, वेरी अंडरस्टैंडिंग, एंड शी हैज़ ग्रे हेयर. तो अब आप बार बार बोलते हैं एक वर्ड, उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, और हेयर टर्न वाइट. वाइट बालों के लिए कभी नहीं यूज़ होता. योर हेयर ऑलवेज टर्न ग्रे, राइट. दिस इज़ द करेक्टर ऑफ मिस बीम. नेक्स्ट सी व्हाट हैपन्स. We talked idly for a little while, and then I asked her some questions as to her scholastic method, which I had heard were simple. No more than is needful to get applications into them, and those are the simplest: spelling, adding, subtracting, multiplying, writing. अब राइटर उसको पूछ रहा है कि मैंने आपके बारे में सुना है दैट यू आर अप्लाइंग सम वेरी गुड टीचिंग मेथड्स ऑन योर स्टूडेंट्स. तो वो क्या है? देन सी इनटू नेक्स्ट स्लाइड. मिस बीन बोल रही है दीज आर वेरी सिंपल मेथड्स, जस्ट मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड ऑल. बट राइटर सेज आई हर्ड so much about the originality of your system, Miss Bean. Yeah, she said, I'm coming to that. The real aim of the school is not so much to instill thought as thoughtfulness, humanity, citizenship. That is the idea I have had. आप देखेंगे वो अपने थॉट्स के बारे में बता रही है मिस बीम कि उसकी जो मेन स्कूल का टीचिंग मेथड है वो क्या है. टू इंस्टिल होता है किसी को, फोर्स देम टू थिंक, कि वो हम बच्चों को ये सोचने में मजबूर कर देते हैं. वी मेक देम थॉटफुलनेस रिगार्डिंग ह्यूमैनिटी एंड सिटीजनशिप. आई एम कमिंग टू पेज नंबर 2. अब वो मिस बीम उसको इनवाइट कर रही है टू कम एंड सी आउट ऑफ द विंडो, राइट. I went to the window which commanded a large garden and playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. I see some very beautiful grounds, he said. A lot of jolly children. What perplexes me and pain me is to notice that they are not as healthy and active as I should wish. As I come in, I saw one poor little thing being led by some other boy. तो वो बोल रहा है कि मैंने जब ग्राउंड में देखा देयर वर मैनी चिल्ड्रन, बट वो बहुत डिसअपॉइंटेड होता है टू सी सम अनहेल्दी चिल्ड्रन. आपको मैंने पहले पॉइंट में डिस्क्राइब किया है अनहेल्दीनेस कहाँ कहाँ है. प्रॉब्लम विद आइज, देयर इज़ अ गर्ल विद क्रच, देयर आर होपलेस क्रिपल्स. ठीक है, तो वो बता रहा है कि वहाँ पे प्लेग्राउंड में there are different children who have problem with eyes or legs or they cannot hear and listen. Then next point आप देखेंगे, Miss Beam laughed. She said she's not lame. This is only her lame day. Nor are those other blind. It's only their blind day. I must have looked very much astonished, for she laughed again. There you have an essential part of a system in a nutshell. In order to get a real appreciation and understanding of misfortune in these young minds, we make them participant in misfortune too. In the course of term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one maimed day, one dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged, and it is a point of honor not to peep. The bandage is put on overnight. They wake blind. This means they need assistance in everything, and other children are told off to help them. अब मिस बीम क्या बता रही है
वो हंसने लग जाती है व्हेन द राइटर टॉक्स अबाउट द क्रिपल्ड चिल्ड्रन। और वो राइटर बोल रहा है कि मैं तो बहुत दुखी हो रहा हूँ इन बच्चों को देख के। वो बोल रही है ऐसा नहीं है, इनमें ना कोई बच्चा लेम है ना ब्लाइंड है, इनको रोल प्लेइंग दिया हुआ है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट, नरेटर इज एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड होता है हैरान हो जाना, परप्लेक्स, कंफ्यूज हो गया, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, जब बच्चा ठीक है तो आप किसी को ब्लाइंड बना रहे हो, किसी को डेफ बना रहे हो, डम बना रहे हो, वाई। फिर उसने क्या आंसर दिया, फोर्थ पॉइंट देखेंगे, इन ऑर्डर टू गेट अ रियल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिसफॉर्चून वी मेक देम पार्टिसिपेंट इन अदर मिसफॉर्चून। कि हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं दैट इफ़ समवन इज़ मिसफॉर्चून, अगर कोई ब्लाइंड है तो देखो ब्लाइंड बन के कैसा लगता है। इफ़ समवन कैन नॉट हियर, तो देखो सुन के, अगर आप सुन नहीं सकते तो कैसा लगता है। सो दैट यू बिकम अ पार्टिसिपेंट इन अदर्स मिसफॉर्चून, ताकि तुम दूसरे लोगों के दुख को समझ सको। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ मिस बीम्स स्कूल। मिस बीम के स्कूल की यही खासियत है, तभी इस स्कूल का नाम क्या है, द स्कूल फॉर सिम्पैथी, जहाँ हम दूसरों के साथ सहानुभूति करना सीखते हैं। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर है। नाउ टर्न टू पेज 3। अभी वो क्या बता रही हैं, कौन कौन से डेज है, यू विल नोट इट हेयर, ब्लाइंड डे, लेम डे, डेफ डे, मेम डे, डम डे। सो आप लोगों की वोकेबलरी में क्या एनहेंसमेंट हो रही है। ब्लाइंड आपको पता है जो देख नहीं सकते, लेम क्या होता है, लंगड़ा, समवन हु कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, डेफ, कुछ लोग इसको डीफ प्रोनाउंस करते हैं, इट्स नॉट डिफ, इट्स डेफ। डेफ मीन्स व्हेन समवन कैन नॉट हेयर। मेम क्या होता है, मेम इज़ क्रिपल्ड, जब आपका कुछ बॉडी पार्ट जो है दैट इज़ नॉट प्रॉपरली फंक्शनड, ठीक है। डम व्हेन यू कैन नॉट स्पीक, जैसे ये जर्नली वर्ड भी यूज़ होता है, कभी किसी को मूर्ख कहना तो वी कैन से ही इज़ डम, राइट, बट डम मीन्स व्हेन यू कैन नॉट स्पीक। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। Miss Beam says, there is no privation about it. Miss Beam continued, everyone is very kind, and it's really something of a joke, although of course before the day is over the reality of the affliction must be apparent even to the least thoughtful. The blind day is of course the worst, she went on, but some of the children tell me that the dumb day is most dreaded. अब वो क्या बोल रही है कि हम लोग जो है कोई भी डेप्रीवेशन नहीं रखते, प्राइवेशन नहीं रखते हैं, और इट्स सम टाइम वेरी पेनफुल एंड सम टाइम इट्स लाइक अ जोक फॉर द स्टूडेंट्स। वो इसको इन्जॉय भी कर रहे हैं, बट एंडिंग इसकी इन्जॉयमेंट में नहीं हो रही है, इसकी एंडिंग कहाँ हो रही है, इन थॉटफुलनेस, व्हेन दे अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर पर्सन, राइट। अब आगे स्टोरी हमारी मूव कर रही है। Miss Beam led me to one of the bandaged girls, a little merry thing whose eyes under the folds were, I felt sure, as black as ash birds. Here's a gentleman come to talk to you, said Miss Beam, and left us. अब मिस बीम नरेटर को, ईवी लुकास को लेके जाती है एक गर्ल के पास हु इज़ बैंडेज्ड। आप लोग देखेंगे यहाँ पे ब्लाइंड गर्ल वर्ड यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है बैंडेज्ड। सो मतलब वो लड़की जो आज प्ले क्या कर रही है, एक ब्लाइंड गर्ल, ठीक है, उसकी आंखें बंधी हुई है। मिस बीम उन दोनों को वहाँ छोड़ के चली जाती है। डोंट यू एवर पीप, PEEP, तो वो पूछता है कि तू कभी झांकती नहीं है बाहर। पीप मीन्स टू सी समथिंग, राइट, जैसे हम बोलते हैं कि तुम यहाँ से बाहर मत झांकना, डोंट पीप आउटसाइड। I asked by way of an opening. Oh no, she exclaimed, that would be cheating, but I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing when feel is going to be hit by something. तो वो लड़की बोल रही है नहीं, I never cheat, it's a cheating if you peep. So but she says it's very very difficult because you always need someone's help to see. Come to page 124. Pretty good, not so careful as I shall be when it's my turn. It has been a blind already are the best. It's perfectly ghastly not to see. I wish you would try. वो लड़की बोल रही है बहुत मुश्किल है, when you cannot see. You should try it. वो राइटर को क्या बोल रही है, you should try it.
शैल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क्ड. इब्यूलिकास लड़की को बोल रहा है क्या मैं तुम्हें लेके चलूँ कहीं. ओ येस शी सेड लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. आपकी स्लाइड में पहला पॉइंट, दे बोथ गो फॉर अ वॉक. गोज लिखा है, इट्स रॉन्ग. इट शुड बी बोथ गो फॉर अ वॉक. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. I shall be so glad when today is over. The other bad day can't be half as bad as this. लड़की बोल रही है कब आज का दिन ओवर होगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी अनदर डे. वो इतना बुरा नहीं होगा जितना ब्लाइंड डे है. हैविंग अ लेग टायर्ड अप एंड होपिंग अबाउट. होपिंग, वन इज होप, वन इज होपिंग. आई विल टेल यू द डिफरेंस. होपिंग अबाउट अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन. उसने बोला कल मुझे क्या बनना है, कल आई हैव टू बी ऑन क्रच, कल मुझे लेम बनना है. ठीक है. एंड शी सेड इट्स वेरी इंजॉयफुल, यू इंजॉय इट व्हेन यू होप. HOPP. हॉप होता है जंप करना. जैसे मेंढक जो होते हैं फ्रॉग्स, दे हॉप. ठीक है. वन इज होप, वन इज हॉप. HOPP हॉप, होप HOPE. सो इट सेज इट्स वेरी इंजॉयफुल व्हेन यू हॉप. आई गेस हैविंग एन आर्म टाइड इज़ अ लिटिल मोर ट्रबलसम. अब वो अपने एक और दिन के बारे में बता रही है कि जब आपकी बाजू बांध देते हैं, when they make you cripple, ठीक है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज यू हैव टू गेट योर फूड कट अप फॉर यू. क्योंकि खाना तो खुद ही काट के बनाना होता है. बट इट डज़ नॉट रियली मैटर. एंड एज फॉर बींग डेफ फॉर अ डे आई शैन माइंड दैट एट लीस्ट नॉट मच, बट बींग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग. वो बोल रही है डेफ बनना भी इतना मुश्किल नहीं है, लेम बनना भी इतना मुश्किल नहीं है, मैम बनना भी इतना मुश्किल नहीं है. What is difficult is to be blind. She says it's frightening. FRI, third point of your slide. Being blind is frightening. FRIGHTEN. Frightening होता है डरावना. कहते हैं ये बहुत डरावना है. आप अपने पॉइंट में देखेंगे. फोर्थ में they discuss about the girl on the terrace. देखिए कैसे. In the playground, I said, going toward the house, Miss Beam is walking up and down the terrace with a tall girl. अब वो पूछ रही है कि वहाँ पे क्या हो रहा है. तो राइटर उसको बता रहा है कि टेरेस में मिस बीम इज़ वॉकिंग अप विद अ गर्ल. वट वॉज द गर्ल गॉट ऑन, माई कंपेनियन आस्क्ड. अ ब्लू स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज. तो वो पूछ रही है लड़की क्या पहनना है उसने. तो राइटर उसको आंसर कर रहा है अ ब्लू स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज. स्टूडेंट्स प्लीज नोट, हेयर वी हैव अ वर्ड. वट हैज़ द गर्ल गॉट ऑन. हम लोग कैसे पूछते हैं व्हाट आर यू वियरिंग, क्या पहनना है. तो इसके लिए एक फ्रेज है गॉट ऑन. व्हाट आर यू गेटिंग ऑन टुडे, आज तुम क्या पहनोगी, राइट. तो वो बता रहा है कि एक लड़की है टेरेस में. एंड द गर्ल सेज हाँ ठीक है, इट इज़ मिली, उसका नाम मिली है. वेरी लाइट आई सेड. येस दैट्स मिली, शी इज़ द हेड गर्ल, शी इज़ ऑफुली डिसेंट. उसके बारे में बता रही कि बहुत अच्छी लड़की है. देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज़. तो मैंने उसको बोला एक यहाँ पे ओल्ड मैन भी है जो रोजेज़ को बांध रहा है. वो बोल रही है येस दैट इज़ पीटर, ही इज़ दी गार्डनर. उसने बोला हाँ ये पीटर है और ये हमारा गार्डनर है. ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड. तो वो ये बोल रहा है कितने साल का है ये, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. इट एक्चुअली डज़ नॉट मीन कि वो 100 साल का है. इसका मतलब है कि वो ही इज़ वेरी ओल्ड. एंड हियर कम्स अ डार्क गर्ल. येस शी सेड दैट इज़ बेरल. उसने बोला हाँ एक और लड़की आ रही है, इसका नाम बेरल है. स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट पॉइंट 5, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे. फर्स्ट इज़ मिली, सेकंड इज़ नॉट बर्ल, इट इज़ बेरल, राइट. एंड अ गार्डनर, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं. And so we walked on, and in steering this little thing about, I discovered that I was 10 times more thoughtful already than I had any notion. अब राइटर बोल रहा है कि मुझे आज ज़िंदगी में एक लेसन मैंने यहाँ से सीखा कि मैं बहुत थॉटफुल हो गया हूँ, यानी कि मेरी जो सोच है वो बदल गई है. And also that the necessity of describing the surrounding to another makes them more interesting. और आज मुझे बड़ा समझ आया कि जब मैंने उस लड़की को जो कि ब्लाइंड रोल कर रही थी, जब मैंने उसको आसपास की चीज़ें डिस्क्राइब की, then you actually enjoyed it. When Miss Beam came to release me, I was sorry to go. अब मिस बीम उसको छोड़ने आती है गेट तक. एंड राइटर जो है he is not willing to go and said so. She replied, then there is something in my system after all. I walked back to the town murmuring the lines. राइटर वापस चला जाता है. लास्ट पॉइंट देखेंगे. ही इज़ मोर थाटफुल.
उसके ऊपर वाला देखेंगे, हिज परसेप्शन हैज़ चेंज्ड, परसेप्शन होता है सोच, उसकी सोच बदल गई है। एंड लास्ट लाइट, अब वो एक लाइन बार बार बोल रहा है, कैन आई सी अनदर्स वू एंड नॉट शेयर देयर सोरो टू, ओ नो नेवर कैन इट बी, नेवर नेवर कैन इट बी। इसका लिटरल ट्रांसलेशन समझेंगे पहले। राइटर कह रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी के दुख देखूं, वो मीन्स दुख, एंड नॉट शेयर देयर सोरो, और उनके सोरो को ना बांटूं। कह रहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सो द राइटर हैज़ लर्नड अ लेसन ऑफ सिंपैथी टूवर्ड्स अदर्स सोरोज एंड वूज, एंड ही इज़ मोर thoughtful than before. This is the central idea of this story. Now come to the next section. Here is the homework for you. You have to write down the meanings of this vocabulary. Bandage, evidently, describe, authoritative, discourse, instill, execution, perplex, nutshell, privation, mem, affliction, apparent, ghastly, dodging, and notion.